My name is Dr. Alokika, and today I am here to present a lecture on exploring the chemistry and production of sustainable biofuels, which is a topic of great significance in today's world. First of all, I am thankful to Dr. Ravinder Singh and Pandit Nikram Government College Rohtak who gave me opportunity to give a lecture. I hope you find this lecture informative and look forward to assisting you in your learning journey. So, first of all, we understand how chemistry is very important for our day-to-day life. So, first of all, importance of chemistry. Chemistry is a central science and it touches all aspects of our lives. Means chemistry plays a fundamental role in our day-to-day lives. It is involved in everything we do, from the food we eat to the clothes we wear and the medicines we take. Here are some ways we can correlate our डे टू डे लाइफ विद केमिस्ट्री. तो केमिस्ट्री हमारी डे टू डे लाइफ के लिए काफी इंपॉर्टेंट है. ये हर चीज में हमारे लिए यूजफुल होता है, यूजफुल होती है. जैसे जो खाना हम खा रहे हैं, कपड़े पहन रहे हैं, मेडिसिन ले रहे हैं, हर चीज में केमिस्ट्री हमारे लिए यूजफुल होती है. जैसे कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं. केमिस्ट्री एंड फूड. केमिस्ट्री इज इन्वॉल्व इन every aspect of cooking and food, from the way we cook and prepare our food to the way our body digests and metabolize it. Chemistry it at work. तो केमिस्ट्री जो भी कुकिंग प्रोसेस हो रही है या जो फूड डाइजेस्ट हो रहा है या मेटाबोलाइज कर रही है हमारी बॉडी, हर चीज में केमिस्ट्री यूजफुल है. Next, medicines and health. Chemistry plays a crucial role in the development of medicines and our overall health. तो केमिस्ट्री काफी यूजफुल होती है. ड्रग्स बना मेडिसिन जो हम लेते हैं, मेडिसिन में केमिस्ट्री का काफी बड़ा रोल होता है और हमारी हेल्थ के लिए भी ये काफी यूजफुल होती है. Cleaning and hygiene. Cleaning products and hygiene products that we use every day, like soap, shampoo, toothpaste, and laundry detergents, all involve chemistry. For example, soap works by breaking up and removing dirt and oil from our skin, while laundry detergents use surfactants to remove stains from the clothes. So chemistry हमारे लिए हमारे क्लीनिंग हाइजीन जो हम डे टू डे लाइफ में सोप, शैम्पू, टूथपेस्ट यूज करें या लॉन्ड्री डिटर्जेंट यूज करें, उसमें केमिस्ट्री यूजफुल होती है. जैसे जो हम सोप यूज करें वो हमारी बॉडी से हमारी बॉडी से डर्ट ऑयल रिमूव करने के लिए, या जो डिटर्जेंट्स हम अपने कपड़ों को वॉश करने के लिए यूज करते हैं वो कपड़ों से स्टेन्स रिमूव करने के लिए, तो वहां पे भी केमिस्ट्री हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट होती है. Energy and the environment. Chemistry is also involved in energy production and environmental issues. The burning of fossil fuels for energy production involves chemical reactions, as does the process of generating electricity from nuclear power. Additionally, the chemistry of air pollution and the greenhouse effect has implications for climate change and the health of the planet. तो chemistry हमारी energy production, environment के लिए भी काफी useful होती है. काफी सारी केमिकल्स रिएक्शंस होती है जिससे एनर्जी का प्रोडक्शन होता है, इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन होता है. तो ओवरऑल केमिस्ट्री हमारे लिए काफी यूजफुल होती है. तो इससे हम क्या कंक्लूड करते हैं? केमिस्ट्री इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ आवर डे टू डे लाइफ एंड वी रिलाई ऑन इट in many different ways. Understanding the chemical processes that underlie everyday phenomena can help us make better choices and lead healthier and more sustainable lives. तो हम इसे यही कंक्लूड करते हैं कि केमिस्ट्री हमारे लिए काफी यूजफुल होते हैं हमारी डे टू डे लाइफ में. कैसे हम हमारी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म हो रहा है, फूड डाइजेस्ट हो रहा है, या हर चीज में केमिस्ट्री हमारे लिए काफी यूजफुल होती है. उसके बाद जैसे मेरा काम माइक्रोबायोलॉजी से रिलेटेड होता है, तो जो मेरा टॉपिक है वो भी माइक्रोबायोलॉजी का है. तो यहाँ पे हम माइक्रोबायोलॉजी और केमिस्ट्री का रिलेशन अंडरस्टैंड करेंगे कि ये दोनों आपस में कैसे रिलेटेड होते हैं. So, microbiology and chemistry are closely related fields that intersect in many ways. Microorganisms such as bacteria, virus, fungi, and parasites play critical roles in many chemical processes in the environment, industry, and human health. तो microorganisms काफी क्रिटिकल रोल प्ले करते हैं हमारे एनवायरनमेंट में, इंडस्ट्री, ह्यूमन हेल्थ में. उसके साथ साथ जो केमिकल प्रोसेसेस होती है, जो केमिकल रिएक्शंस होती है, वहां पे भी ये काफी
क्रिटिकल रोल प्ले करते हैं। तो काफी सारे एग्जांपल्स हैं जिससे हम माइक्रोबायोलॉजी को केमिस्ट्री के साथ को रिलेट कर सकते हैं, जैसे बायोजियोकेमिकल साइकिल्स, जो भी काफी सारी बायोजियोकेमिकल साइकिल्स होती है हमारे एनवायरनमेंट में, जैसे कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर, वहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का काफी इन्वॉल्वमेंट होता है। उसके साथ साथ केमिकल रिएक्शंस भी प्रोसेस होती है एनवायरनमेंट में। तो इस तरीके से हम माइक्रोबायोलॉजी और केमिस्ट्री के रिलेशन को समझ सकते हैं। देन इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस, many industrial processes rely on microorganisms to produce valuable chemicals such as enzymes, biopolymers, and biofuels. These processes involve the use of specific microorganisms and the manipulation of their metabolism to produce the desired chemical products. तो जो इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस होती हैं, कोई भी वैल्यूएबल केमिकल्स बन रहे हैं, एंजाइम, बायोपॉलिमर, बायोफ्यूल्स, वहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का काफी रोल होता है। उसके साथ साथ काफी सारी केमिकल रिएक्शंस होती हैं। तो उन केमिकल रिएक्शंस और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज करके काफी सारे वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स बनाए जा सकते हैं। Food and agriculture. Microorganisms play a significant role in food production and agriculture, both as pathogens that cause food spoilage and disease, and as beneficial microbes that contribute to food preservation, fermentation, and digestion. तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का काफी रोल होता है फूड प्रोडक्शन और एग्रीकल्चर में। जैसे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो हमारे लिए हार्मफुल भी होते हैं, यूजफुल भी होते हैं। जो हार्मफुल हो गए उन्हें हमें पैथोजेंस बोलते हैं, क्यों? क्योंकि वो हमें हमें डिजीज कोज करते हैं या हमारे फूड का स्पाइलेज करते हैं। उसके साथ साथ हमारे कुछ जो माइक्रोब्स होते हैं वो बेनिफिशियल भी होते हैं हमारे लिए, फूड को प्रिजर्व करने में, फर्मेंटेशन, डाइजेशन में उनका काफी अच्छा रोल होता है। Then human health. Microorganisms are involved in many chemical processes in the human body, include digestion, metabolism, and immune system function. तो जैसे हमने पीछे पढ़ा था कि डाइजेशन या मेटाबॉलिज्म हो रहा है, वहाँ पे काफी सारी केमिकल रिएक्शंस काम करती हैं। तो उसके साथ साथ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी उन केमिकल प्रोसेसेस में इन्वॉल्व होते हैं। तो इससे हम ये चीज समझ सकते हैं कि माइक्रोबायोलॉजी और केमिस्ट्री भी आपस में इंटर रिलेटेड होते हैं। तो इससे हमने अभी तक यही अंडरस्टैंड किया कि केमिस्ट्री हमारी डे टू डे लाइफ के लिए कितनी इंपॉर्टेंट होती है। उसके साथ साथ माइक्रोबायोलॉजी और केमिस्ट्री का क्या रिलेशन होता है। देन वी डिस्कस अबाउट माय टॉपिक, एक्सप्लोरिंग द केमिस्ट्री एंड प्रोडक्शन ऑफ सस्टेनेबल बायोफ्यूल्स। तो केमिस्ट्री को यूज करके और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यूज करके हम सस्टेनेबल बायोफ्यूल्स की कैसे प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो आज के टाइम पर पेट्रोल जो काफी महंगा हो चुका है, उसके साथ हमारे एनवायरनमेंट के लिए भी हार्मफुल है। तो उसका हम अल्टरनेट क्या यूज कर सकते हैं? हम बायोफ्यूल्स, बायोइथेनॉल यूज कर सकते हैं। तो वो हमारे लिए एक सस्टेनेबल है। सस्टेनेबल मतलब एक रिन्यूएबल है, क्योंकि उसको जो प्लांट्स, एल्गी, एग्रीकल्चर वेस्ट, उससे हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। एनवायरनमेंट के लिए भी यूजफुल है। तो ये काफी अच्छा टॉपिक है समझने के लिए कि हम बायोफ्यूल्स को का प्रोडक्शन कैसे कर सकते हैं माइक्रोबायोलॉजी और केमिस्ट्री को यूज करके। Biofuels production in microbiology using enzymes and bacteria is closely correlated with chemistry. Biofuel production involves the conversion of organic materials such as agriculture waste or algae into usable fuels such as ethanol or biodiesel. This process involves various chemical reactions that are catalyzed by enzymes or bacteria. तो जो बायोफ्यूल का प्रोडक्शन होता है उसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, एंजाइम्स का यूज होता है, बैक्टीरिया का यूज होता है, और उसमें काफ़ी सारी केमिकल रिएक्शंस होती है। तो इन सब को यूज़ करके बायोफ्यूल का प्रोडक्शन कर सकते हैं। कैसे? कोई भी ऑर्गेनिक मैटर है, जैसे एग्रीकल्चर वेस्ट है या एल्गी है, इनको केमिकल रिएक्शन एंजाइम्स और बैक्टीरिया की हेल्प से पहले क्या करते हैं? कन्वर्ट करते हैं। स्मॉलर लार्जर से ब्रेक डाउन करके सिंपलर वन में कन्वर्ट करते हैं, फिर प्रोसेस करके इनको बायोफ्यूल में कन्वर्ट किया जाता है। तो यहाँ पे केमिस्ट्री भी इन्वॉल्व हो रही है और माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और बैक्टीरिया भी यूज हो रहे हैं। Enzymes are biological catalysts that facilitate chemical reaction. They are used in biofuel production to break down complex molecules into सिंपलर वंस। तो एंजाइम्स का क्या रोल होता है? एंजाइम्स कोई भी केमिकल रिएक्शन उसको क्या करते हैं? स्पीड अप करते हैं, और जो भी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स है उनको सिंपलर वन में ब्रेक डाउन करते हैं। तो ये काफी यूजफुल होता है हमारे लिए। बैक्टीरिया आर आल्सो यूज्ड इन बायोफिल प्रोडक्शन
as they can carry out various chemical reactions. तो बैक्टीरिया कैसे यूजफुल हुए? फॉर एग्जांपल सर्टेन बैक्टीरिया कैन कन्वर्ट ग्लूकोज इनटू इथेनॉल थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड फर्मेंटेशन. दिस प्रोसेस इन्वॉल्व्स द कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू पायरुवेट व्हिच इज देन कन्वर्टेड इनटू इथेनॉल. तो एक होती है एरोबिक रिएक्शन, एक होती है एनारोबिक रिएक्शन. तो एरोबिक रिएक्शन में ग्लूकोज ब्रेक डाउन होकर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में कन्वर्ट होती है, और एनारोबिक रेस्पिरेशन जिसको हम फर्मेंटेशन भी बोलते हैं, उसमें ग्लूकोज किस में कन्वर्ट होता है? इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होता है. तो यहाँ पे इस तरीके से फर्मेंटेशन से जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज को इथेनॉल में कन्वर्ट किया जा सकता है. Chemistry plays a vital role in understanding the mechanisms behind these enzymatic and bacterial reactions. तो अभी हमने ये पढ़ा कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूज हो रहे हैं, एंजाइम्स यूज हो रहे हैं, बट उसमें जो भी एंजाइमेटिक या बैक्टीरियल रिएक्शंस होते हैं वहां पे क्या इन्वॉल्व हो रही है? केमिस्ट्री इन्वॉल्व हो रही है. फॉर एग्जाम्पल द काइनेटिक्स ऑफ एंजाइमेटिक रिएक्शंस कैन बी अंडरस्टूड यूजिंग प्रिंसिपल्स ऑफ केमिकल काइनेटिक्स. Similarly, the thermodynamics of these reactions can be understood using principles of thermodynamics. Furthermore, chemical analysis is essential in the production of biofuels as it allows for the characterization and quantification of the biofuels production. अब जैसे जो भी केमिकल रिएक्शन हुई उसके बाद बायोफ्यूल का प्रोडक्शन हुआ, तो उसकी करेक्टराइजेशन और उसकी क्वांटिफिकेशन चेक करने के लिए वहां पे भी केमिस्ट्री की इन्वॉल्वमेंट है. जैसे गैस क्रोमेटोग्राफी है टेक्निक, जिसको यूज करके हम इथेनॉल का कितना अमाउंट प्रोड्यूस हुआ है उसको चेक कर सकते हैं. In summary, biofuel production in microbiology using enzymes and bacteria is closely correlated with chemistry as it involves various chemical reactions. Principles of chemistry are used to understand and optimize these reactions. तो इस तरह हम कंक्लूड कर सकते हैं कि बायोफ्यूल का जो प्रोडक्शन हो रहा है, जो हमारे लिए काफी यूजफुल है, एक सस्टेनेबल बायोफ्यूल का प्रोडक्शन हो रहा है, वो उसमें माइक्रोबायोलॉजी और केमिस्ट्री दोनों का इन्वॉल्वमेंट होता है. तो अभी तक हमने यही डिस्कस किया कि केमिस्ट्री हमारे लिए डे टू डे लाइफ के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, और माइक्रोबायोलॉजी और केमिस्ट्री कैसे कोरिलेटेड है, और उससे हम एक यूजफुल बायोफ्यूल प्रोडक्ट बायोफ्यूल बना सकते हैं जो हमारे एनवायरनमेंट के लिए और हमारी पॉपुलेशन के लिए काफी यूजफुल होता है. Then advantages and applications of biofuels. Biofuel production is beneficial for the earth as compared to petrol used in several ways. तो हम बायोफ्यूल का अभी तक पढ़ रहे थे कि बायोफ्यूल इम्पोर्टेंट है, पर पेट्रोल से वो कैसे इम्पोर्टेंट है, क्या जो उसके एडवांटेजेस हैं वो देखेंगे. Renewable source biofuels are derived from renewable sources such as plant matter, algae and agriculture waste. तो बायोफ्यूल्स का प्रोडक्शन किससे हो रहा है? रिन्यूएबल सोर्सेज से, जैसे प्लांट, एल्गी, एग्रीकल्चर वेस्ट. वाइल पेट्रोल इज नॉन रिन्यूएबल फॉसिल फ्यूल. तो पेट्रोल नॉन रिन्यूएबल फॉसिल फ्यूल है, तो इस तरीके से हमारे लिए ये जो बायोफ्यूल है वो बेनिफिशियल है एज कंपेयर टू petrol. Then reduce greenhouse gas emission. Biofuels produce significantly lower greenhouse gas emission than petrol, reducing the overall carbon footprint of transportation. तो biofuels काफी significant होते हैं क्योंकि lower करते हैं वो greenhouse gas emission को petrol के comparison में. Engine performance. Biofuels can improve engine performance, reducing engine wear and extending engine life. So overall, the use of biofuels as an alternative to petrol is an important step towards sustainable transportation and reduce the negative impact of transportation on the environment and the human health. तो हमारे लिए ऐसे बायोफ्यूल काफी important है as compared to petrol. Then we will discuss about my PhD work. तो जो मेरा पीएचडी का वर्क था उसमें ज़ैलिनेज का प्रोडक्शन किया था. मैंने सबस्ट्रेट यूज किया था शुगर केन बगास एंड राइस स्ट्रो, जो कि एक एग्रीकल्चर वेस्ट है, उसको यूज करके ज़ैलिनेज एंजाइम प्रोड्यूस किया था. उसको बैक्टीरिया यूज करके ज़ैलिनेज एंजाइम यूज किया था. उस ज़ैलिनेज एंजाइम को फिर क्या किया, पार्शियली प्यूरिफाई किया. प्यूरिफाई करने के बाद उसकी करेक्टराइजेशन चेक की और उससे फर्दर रिड्यूसिंग शुगर प्रोड्यूस हुई, और उन रिड्यूसिंग शुगर को किस में कन्वर्ट किया? बायो इथेनॉल में कन्वर्ट किया. तो ये पूरा वर्क है जिसको हम स्टार्ट करते हैं. तो जैसे ये बायो एनर्जी क्रॉप, ये क्रॉप शो हो रही है, तो जो भी लिग्नोसेल्यूलोजिक बायोमास है, जैसे शुगर केन बगास मैंने यूज किया, राइस स्ट्रो,
राइस स्ट्रो को जैसे हम पराली बोलते हैं, तो आज के टाइम पे ये राइस स्ट्रो या जो भी खेतों में अनाज निकलने के बाद जो एग्रीकल्चर वेस्ट छोड़ दिया जाता है, उसको जो किसान होते हैं वो उसको जला देते हैं। उससे क्या होता है, पॉल्यूशन, काफ़ी पॉल्यूशन की प्रॉब्लम चल रही है इसकी वजह से। तो उसको हम कैसे यूटिलाइज़ कर सकते हैं? उस जो भी एग्रीकल्चर वेस्ट हो, उसको हम लार्ज स्केल पर इंडस्ट्री के अंदर हम बायोफ्यूल प्रोडक्शन में हेल्प यूज़ कर सकते हैं। तो इससे हमें क्या बेनिफिट होगा? इससे एक तो ये कि एनवायरमेंटल पॉल्यूशन कम होगा, उसके साथ-साथ लोगों को जॉब मिलेगी, कोई इंडस्ट्री इससे रिलेटेड स्टार्ट होगी तो फार्मर्स के लिए भी काफ़ी अच्छा होगा। उनको प्रॉब्लम रहती है कि इसको कहाँ पे हम स्टोर करें या क्या करें इसका? तो इस तरीके से हम जो एग्रीकल्चर वेस्ट है, लिग्नोसेल्यूलोज़िक बायोमास है, उसको इंडस्ट्रियल यूज़ में ला सकते हैं और उससे हम एक वैल्यूएबल प्रोडक्ट बना सकते हैं। तो ये सारा काम इससे रिलेटेड है। So lignocellulose is the most abundant renewable biomass on the earth. तो plants कितने काफी होते हैं, lignocellulosic biomass काफी abundant है. The main constituent of lignocellulosic materials are cellulose, hemicellulose and lignin along with smaller amount of pectin and protein. तो जैसे lignocellulosic material है, इसके अंदर component present है hemicellulose, lignin and cellulose. The huge amount of residual plant biomass can potentially be used to produce various value-added products like biofuel, animal feed, chemicals and enzymes etc. तो जो भी ये रेजिडुअल प्लांट बायोमास है, इसको हम वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स की फॉर्मेशन में यूज कर सकते हैं, जैसे बायोफ्यूल का फॉर्मेशन, एनिमल फीड, केमिकल, एंजाइम, इनका हम प्रोडक्शन कर सकते हैं। They are usually left to rot or burned in the field after harvesting. Utilization of these materials for industrial purpose not only solve the problem for proper disposal but also provide an additional income to the farmers. यही डिस्कस कर रहे थे कि हम इसको प्रॉपरली अगर यूज करके इंडस्ट्रियल पर्पज में यूज करेंगे तो सबके लिए प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। तो जैसे मैंने बताया कि मेरा काम था ज़ैलिनेज एंजाइम पर। तो जैसे जो ये हेमिसेल्युलोज़ होता है, हेमिसेल्युलोज़ के अंदर क्या होता है, काफ़ी अलग-अलग और कंपोनेंट्स होते हैं, तो इस हेमिसेल्युलोज़ के अंदर ज़ाइलन भी प्रेज़ेंट होता है। तो xylan is the main constituent of hemicellulose is present in the lignocellulosic biomass. एक ये constituent इसके अंदर present होता है. It is a linear beta 1,4-D xylose backbone and substituted with different side chains, especially alpha D glucosylate and alpha L arabinosyl unit. तो ये एक xylose backbone xylose सब यूनिट से मिलके बना होता है, जिसमें बीटा 1,4-D क्या होता है, बॉन्ड प्रेजेंट होता है। तो इसको ब्रेक डाउन करने के लिए ज़ैलिनेज एंजाइम की ज़रूरत पड़ती है। जैसे सेलुलोज़ प्रेज़ेंट होता है, उसको सेलुलेज़ एंजाइम डाइजेस्ट करता है, ऐसे ज़ाइलन को ज़ैलिनेज एंजाइम, ये एक इट इज़ अ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम व्हिच क्लीव द बीटा 1,4-D ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड्स इन द ज़ाइलन बैकबोन। तो ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है जो ये बॉन्ड्स को ब्रेक डाउन करता है। तो इस ज़ैलिनेज एंजाइम का मैंने प्रोडक्शन किया लिग्नोसेल्यूलोज़िक जो बायोमास था शुगरकेन बगास और राइस स्ट्रो से, और अ, बैक्टीरिया की अ, बैक्टीरिया की हेल्प से, तो इस ज़ैलिनेज एंजाइम को फर्दर यूज़ किया। तो ओवरऑल जो वर्क प्लान वो ये है। फर्स्ट सिलेक्शन, जैसे बैक्टीरिया की बात कर रही हूँ मैं, तो बैक्टीरिया 2 बैक्टीरिया थे बैसिलस सबटिलिस की, 2 स्ट्रेन्स थी, जेजेबीएस 250 एंड जेजेबीएस 300। तो उसमें से अ, एक बैक्टीरिया को चूज़ किया, उसके बाद ऑप्टिमाइज़ेशन किया। 2 फर्मेंटेशन प्रोसेस है, एसएमएफ एंड एसएसएफ, सॉलिड स्टेट फर्मेंटेशन एंड सबमर्ज्ड फर्मेंटेशन। उससे ऑप्टिमाइज़ेशन के बाद जो भी ज़ैलिनेज़ जो भी एंजाइम आया उसका पार्शियल प्यूरिफिकेशन किया, फिर बायोकेमिकल कैरेक्टराइज़ेशन, उसके बाद सैक्रिफिकेशन किया लिग्नोसेल्यूलोज़िक बायोमास का, और उससे बायोफ्यूल का प्रोडक्शन किया। तो ये ओवरऑल एक वर्क प्लान है जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे। So first of all, selection of potent xylanase producing strain of Bacillus subtilis subspecies subtilis. तो एक potent strain, एक जो ज्यादा xylanase प्रोडक्शन में हेल्पफुल थी, उस स्ट्रेन को सिलेक्ट किया। तो 2 स्ट्रेन्स थी, जेजेबीएस 250 एंड जेजेबीएस 300। तो उसका क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव स्क्रीनिंग की, और उससे क्या हुआ कि xylanase जेजेबीएस जो 250 था, उसका
जो जेलिनेज एक्टिविटी वो ज़्यादा पाएगी एज़ कम्पेयर टू जेजेबीएस 300। तो जैसे ये ज़ोनोफाइटोलिसिस दिख रहा है, इसमें इसकी जेलिनेज एक्टिविटी ज़्यादा है, तो इस और भी काफ़ी सारे टेस्ट किए थे, जिससे ये फाइनलाइज़ किया कि जेजेबीएस 250 ज़्यादा ज़ैलिनेज प्रोडक्शन में हेल्प करेगा। तो इसको सिलेक्ट कर लिया, इसकी बायोकेमिकल जो इसकी मोर माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स को चेक किया गया कि लाइट माइक्रोस्कोप के अंडर कि जो जेजेबीएस 250 बैक्टीरिया है, ग्राम स्टेनिंग से चेक किया तो वो ग्राम पॉजिटिव बेसिलाई रोड शेप्ड बैक्टीरिया है। उसके बाद सिलेक्शन के बाद ऑप्टिमाइजेशन ऑफ ज़ैलिनेज प्रोडक्शन इन सबमर्ज्ड फर्मेंटेशन एंड सॉलिड स्टेट फर्मेंटेशन। तो उसके बाद ज़ैलिनेज का प्रोडक्शन ऑप्टिमाइजेशन चेक किया, सबमर्ज्ड फर्मेंटेशन और सॉलिड स्टेट फर्मेंटेशन। तो ये फर्मेंटेशन प्रोसेस होती है, फर्मेंटेशन होती है, तो इसमें एक तो सॉलिड स्टेट, एक तो सॉलिड मीडियम में होता है और एक लिक्विड मीडियम में होता है, उसको बोलते हैं सबमर्ज्ड फर्मेंटेशन। तो इसमें काफ़ी सारे जो फैक्टर्स थे उसको ऑप्टिमाइज़ किया गया वन वेरिएबल एट अ टाइम अप्रोच से, मतलब डिफरेंट जैसे केन मोलेसिस की कंसंट्रेशन चेक की कि किस कंसंट्रेशन में, जैसे 10%, 12%, 14%, 16%, किस कंसंट्रेशन पे ज़्यादा जेलेनियस प्रोडक्शन हो रहा है, तो इसमें 10% आया। पीएच ली काफ़ी, तो पीएच जैसे 4, 5, 6, 7, 8, तो 4 पे पीएच पे ज़्यादा जेलेनियस की एक्टिविटी आई, टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस, नाइट्रोजन सोर्सेज यूज़ किए, पेग यूज़ किया, इंक्यूबेशन टाइम। तो ये ओवरऑल सब एक वन वेरिएबल एट अ टाइम से इसका ऑप्टिमाइज़ेशन किया सबमर्ज फर्मेंटेशन के अंदर, तो उसमें ज़ैलिनेस प्रोडक्शन का चेक किया गया। उसके बाद वो था वन वेरिएबल एट अ टाइम अप्रोच। फिर क्या कैसे चेक किया गया ज़ैलिनेस प्रोडक्शन? स्टैटिस्टिकल डिज़ाइन से चेक किया गया। तो इसमें क्या होता है, इन सारे कंपोनेंट्स की जो सारे जो फैक्टर्स थे, इनकी अलग-अलग कंपोज़िशन लेके चेक किया गया कि कहाँ पे ज़ैलिनेस का प्रोडक्शन ज़्यादा मिला है। तो उससे ये चेक हुआ कि वन वेरिएबल एट अ टाइम पे तो ज़ैलिनेस प्रोडक्शन इतना था और स्टैटिस्टिकल से ज़ैलिनेस प्रोडक्शन इम्प्रूव हो गया। तो इतना फोल्ड 2.54 फोल्ड इम्प्रूवमेंट आई, तो जो स्टैटिस्टिकल ऑप्टिमाइज़ेशन से फर्दर ज़ैलिनेस का प्रोडक्शन किया गया, क्योंकि यहाँ पर ज़ैलिनेस का प्रोडक्शन ज़्यादा आ रहा था एज़ ए कंपेयर टू वन वेरिएबल एट अ टाइम अप्रोच। तो ज़ैलिनेस का प्रोडक्शन कर लिया इससे। ये था सबमर्ज्ड फर्मेंटेशन में, ये है सॉलिड स्टेट फर्मेंटेशन में भी एज़ इट इज़ ऐसे वन वेरिएबल एट अ टाइम अप्रोच से पीएच, टेम्परेचर, नाइट्रोजन सोर्स, इंक्यूबेशन टाइम, ये सब कुछ चेक किया गया और ज़ैलिनेस की प्रोडक्शन एक्टिविटी चेक की गई। फिर उसके बाद वन वेरिएबल इसमें भी स्टैटिस्टिकल ऑप्टिमाइज़ेशन से चेक किया, तो इसमें भी स्टैटिस्टिकल ऑप्टिमाइज़ेशन में ज़ैलिनेस का प्रोडक्शन ज़्यादा आ रहा था, ज़्यादा फोल्ड इसमें इम्प्रूवमेंट आया, तो स्टैटिस्टिकल ऑप्टिमाइजेशन को यूज़ करते हुए ज़ैलिनेस का प्रोडक्शन किया सॉलिड स्टेट फर्मेंटेशन में। तो इस तरीके से दोनों सबमर्ज्ड फर्मेंटेशन और सॉलिड स्टेट फर्मेंटेशन से जो भी ज़ैलिनेज एंजाइम है, उसका प्रोडक्शन हो गया। ज़ैलिनेज एंजाइम का प्रोडक्शन होने के बाद वो क्रूड फॉर्म में होता है, तो उसको प्यूरिफाई किया जाता है। तो मैंने यहाँ पे पार्शियल प्यूरिफिकेशन किया था, क्योंकि उसके अंदर काफ़ी और भी कंपोनेंट्स प्रेज़ेंट होते हैं। जो हमारा जो क्रूड आता है, उसमें काफ़ी सारे और भी कंपोनेंट्स होते हैं, पर हमें क्या होता है, हमें अपने ज़ैलिनेज को एक्सट्रैक्ट करना होता है, प्यूरिफाई करके। तो वो किया गया इसमें। तो bacterial xylanase was partially purified using lyophilization, gel filtration chromatography and further use for characterization of various parameters। तो इसमें जो xylanase का प्रोडक्शन है उसे पार्शियल प्यूरिफिकेशन किया, जैसे क्रूड एक्सट्रैक्ट आया, उसका लाइफिलाइजेशन किया, जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी से आगे फर्दर प्यूरिफाई किया और उसके बाद कैरेक्टराइजेशन चेक की वेरियस पैरामीटर्स पे, टेम्परेचर, पीएच, इफेक्ट ऑफ मेटल आयंस एक्सेट्रा, ऐसे उसकी कैरेक्टराइजेशन चेक की गई। तो इस तरीके से जैसे अलग-अलग जो फ्लास्क लिए जाते थे, उसमें ये फर्मेंटेशन की जाती थी, तो उससे ऐसे एंजाइम प्रोड्यूस होता था। ये क्रूड एक्सट्रैक्ट है। इस क्रूड एक्सट्रैक्ट को ये है तो वो क्रूड एक्सट्रैक्ट आ गया, उसके बाद हमें लाइफलाइज़र ये एक इंस्ट्रूमेंट होता है। इसमें उसको लाइफलाइज़ किया, तो लाइफलाइज़ेशन हम एक फ्रीज़ ड्राइंग भी कह सकते हैं कि मतलब जो हमारा लिक्विड जो हमारा जो भी कोई भी प्रोडक्ट है, जैसे यहाँ पे हम एंजाइम की बात कर रहे हैं, और भी कोई भी प्रोडक्ट हो सकता है। उसको वो लिक्विड फॉर्म में है, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, फ्रीज़ ड्राइंग कर सकते हैं। तो उसमें क्या होता है, रिमूव वाटर फ्रॉम मटीरियल एंड एक्सटेंड इट्स शेल्फ लाइफ। तो इस जो भी मटीरियल होता है, उसका लिक्विड पार्ट इसमें क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है और वो पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है और कंसंट्रेट हो जाता है।
तो जो भी लिक्विड है वो इतना उसका वाटर रिमूव हो जाता है कि वो ड्राई फॉर्म में आ जाता है लाइफलाइजर मशीन को यूज करके। तो उसके बाद लाइफलाइजेशन किया। लाइफलाइजेशन के बाद क्या, जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी, ये भी एक काफी अच्छी टेक्निक है। तो इस टेक्निक को यूज करके आगे प्यूरिफाई किया गया। तो इसमें जैसे ये कोलम होता है, कोलम के अंदर बीड्स डाले जाते हैं। जैसे मैंने सेफेडेक्स G50 बीड्स को यूज किया गया था। तो इसका प्रिंसिपल क्या होता है कि इसमें एक स्टेशनरी फेज होता है, एक मोबाइल फेज होता है। तो स्टेशनरी फेज इसमें क्या आ गई है, बीड्स है जो कोलम के अंदर ये पैक्ड कर रखी है बीड्स, ये है। मोबाइल फेज क्या होता है, इसमें सैंपल होता है जो हम लोड करते हैं। तो सबसे पहले ये जो कोलम होता है, कोलम के अंदर इन बीड्स को पैक किया जाता है। पैक करने के बाद वो हमारा एक स्टेशनरी फेज बन गया। तो वो बीड्स जो होती हैं उसमें मैट्रिक्स होते हैं, छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे इसमें इमेज में शो हो रहा है कि उसमें छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं। तो इसमें क्या होता है, प्रोटीन्स का सेपरेशन होता है। तो एंजाइम जो है, जैसे जेलेनेज एंजाइम, एंजाइम क्या होता है, एंजाइम प्रोटीन होता है। तो प्रोटीन का सेपरेशन करते हैं इसमें मोलिकुलर मास के बेसिस पे। इसका मोलिकुलर जो मास के बेसिस पे प्रोटीन का सेपरेशन करते हैं। तो इसमें जैसे पहले ये लोड कर दिए गए बीट्स, बीट्स लोड करने के बाद इसको क्या करते हैं, इसको कैलिब्रेट करते हैं बफर से। फिर उसके बाद सैंपल को लोड करते हैं। तो जो बड़े जो पार्टिकल्स होते हैं प्रोटीन के, वो क्या हो जाएंगे, पहले इससे बाहर आ जाएंगे, क्योंकि वो मैट्रिक्स के अंदर नहीं जाएंगे। मैट्रिक्स के अंदर नहीं जाएंगे क्योंकि उसका पोर साइज क्या होता है, छोटा होता है। तो वो इसमें से बीड्स के साइड का जो पार्ट है वहां से नीचे कलेक्ट होते जाते हैं। जैसे इसमें कलेक्ट फ्रैक्शंस दिखा रखी है 1 2 3 4 5 6। तो इसमें जैसे पहले 1 और 2 में क्या है, जो हमने बफर से इसको कैलिब्रेट किया वो आया। उसके बाद क्या आ गया, प्रोटीन जो आने लगे, जो बड़े साइज के लार्ज साइज प्रोटीन है वो पहले आएंगे। फिर उसके बाद जो छोटे साइज के प्रोटीन्स थे वो इस मैट्रिक्स के अंदर चले जाते हैं। तो बड़े साइज के प्रोटीन्स को पास आउट होने के बाद छोटे साइज के प्रोटीन्स आने लग जाते हैं। तो ऐसे प्रोटीन्स का मोलिकुलर साइज के बेसिस पे, इसको साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी बोलते हैं। इस पे साइज के बेसिस पे सेपरेशन होता है। तो साइज के बेसिस पे पहले बड़े साइज के प्रोटीन पार्टिकल्स आएंगे, फिर छोटे साइज के प्रोटीन पार्टिकल्स आएंगे। तो इस तरीके से प्रोटीन्स का सेपरेशन हो जाता है। उसके बाद ये पार्शियल प्यूरिफिकेशन हो गया। पार्शियल प्यूरिफिकेशन होने के बाद जैसे क्रूड एक्सट्रैक्ट का प्यूरिफिकेशन फोल्ड ये था, लाइफलाइजेशन का ये, जेल फिल्ट्रेशन का ये, तो ऐसे ही ये प्यूरिफिकेशन फोल्ड बढ़ता गया और ये प्यूरिफाइड हो गया। तो प्यूरिफाइड होने के बाद काफी सारी ये इसकी कैरेक्टराइजेशन की एक्टिविटीज चेक की गई, काफी सारे अलग अलग जो कैरेक्टराइजेशन इफेक्ट चेक किए गए, मेटल्स या सरफेक्टेंट या जो भी थे सब पे ये चेक किया गया। उसके बाद जो पार्शली प्यूरिफाइड जो प्रोटीन आया, पार्शली प्यूरिफाइड प्रोटीन जो भी आया उसको नेटिव और एसजीएस पेज में रन किया गया। तो इसमें भी प्रोटीन का क्या होता है, इसमें प्रोटीन का सेपरेशन होता है। तो जैसे साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी में साइज के बेसिस पे हुआ था, तो इसमें क्या होता है, मोलिकुलर वेट के बेसिस पे। जैसे एसजीएस पेज होता है, सोडियम डोडिसाइल सल्फेट पॉलीएक्रिलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें मोलिकुलर वेट के बेसिस पे प्रोटीन्स का सेपरेशन होता है। तो स्मॉलर प्रोटीन्स माइग्रेट फास्टर, जो छोटे प्रोटीन्स होते हैं वो जल्दी रन कर जाते हैं इसमें। जो भी जो जैसे ये जेल प्रिपेयर किया जाता है इस तरीके से। यस यस पेज है, इसमें स्टैकिंग जेल होता है, रिजोल्विंग जेल होता है। यहाँ पे अपने जो सैंपल्स होते हैं उनको लोड किया जाता है और इसको रन किया जाता है। तो जो स्मॉलर प्रोटीन माइग्रेट वो क्या होते हैं, जल्दी रन कर जाते हैं इसके अंदर, और जो बड़े साइज के प्रोटीन्स है वो ऊपर की तरफ रह जाते हैं। तो इस तरीके से मोलिकुलर वेट के बेसिस पे एसजीएस पेज में ये प्रोटीन्स का सेपरेशन होता है नेटिव पेज में। और एसजीएस में क्या होता है, एसजीएस क्या होता है, एक डिटर्जेंट होता है जो प्रोटीन को क्या करता है, डीनेचर कर देता है। फिर नेटिव जो पेज होता है, नेटिव पेज में क्या होता है, नेट चार्ज साइज और शेप होती है जो नेटिव स्ट्रक्चर। जो एक तो प्रोटीन एसजीएस क्या कर रहा है, प्रोटीन को डीनेचर कर रहा है, और नेटिव में क्या हो रहा है कि उसका जो नेटिव स्ट्रक्चर है, जो ओरिजिनल स्ट्रक्चर है, उसको सेपरेट करता है चार्ज साइज और शेप के बेसिस पे। तो यही है जो ये जो
जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी किया था, इसमें प्रोटीन्स को साइज के बेसिस पे, इसलिए इसको साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी, साइज के बेसिस पे सेपरेट किया था। फिर इसके बाद इसके अंदर जो एसजीएस पेज के अंदर किसके बेसिस पे किया था, मोलिकुलर वेट के बेसिस पे किया था। नेटिव पेज जैसे इसमें दे रखा है, ये जो आगे है ये एसजीएस पेज, और ये एसजीएस पेज और नेटिव इसमें रन किया गया है। तो इसमें एक में तो क्या है, एसजीएस पेज है और एक नेटिव, तो इसमें एक मोलिकुलर वेट के बेसिस पे किया गया है और एक इसमें नेट चार्ज, साइज और शेप के बेसिस पे जो नेटिव स्ट्रक्चर है प्रोटीन को, उसको सेपरेट किया गया है। तो इसके बाद फिर जो भी प्यूरिफाइड जेलिनेज एंजाइम आ गया था, तो उसमें बैक्टीरिया से भी किया था ऐसे ज़ैलिनेज एंजाइम का प्रोडक्शन, और फंगस से भी किया था। तो उससे क्या किया, सैक्रिफिकेशन किया लिग्नोसेल्यूलोसिक बायोमास का। सैक्रिफिकेशन कहता है ये ब्रेक डाउन हो जाता है लिग्नोसेल्यूलोसिक बायोमास और शुगर्स का प्रोडक्शन होता है। तो इसमें शुगर केन बगास और राइस स्ट्रो को यूज किया था। तो जो भी शुगर केन बगास और राइस स्ट्रो यूज किया था, उसको अनट्रीटेड और प्री ट्रीटेड दोनों तरीके से इसको क्या किया था, सैक्रिफिकेशन। अनट्रीटेड में क्या होता है, कोई भी हम केमिकल्स यूज नहीं करते, और प्री ट्रीटेड में क्या है, केमिकल्स को यूज करके क्या करते हैं, उसका प्री ट्रीटमेंट करते हैं पहले सबस्ट्रेट का। तो उससे क्या हो जाता है, उसका ब्रेक डाउन ईजी हो जाता है, क्योंकि केमिकल्स वगैरह पहले बॉन्ड वगैरह ब्रेक कर देते हैं, फिर हम एंजाइम को एक्ट करवाते हैं, तो इजीली बॉन्ड ब्रेक डाउन हो जाते हैं और मोर रिड्यूस्ड शुगर का प्रोडक्शन होता है। तो यहाँ पे कंपैरिजन चेक किया था कि कहाँ पर रिड्यूस्ड शुगर का प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है, अनट्रीटेड सबस्ट्रेट में या प्री ट्रीटेड सबस्ट्रेट में। और जो भी सबस्ट्रेट था, जैसे उसको बाय फिजिकल कैरेक्टराइजेशन चेक की थी, सैम से, एफटीआर, एक्सआरडी, ये भी अलग अलग टेक्निक होती हैं, जैसे सैम स्कैन, इलेक्ट्रॉन स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। जैसे राइस प्रो का है, तो ए में क्या है, कॉम्पैक्ट माउस है, कॉम्पैक्ट ये स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर। बी में क्या है, प्री ट्रीटमेंट के बाद क्रैक हो गए हैं, सरफेस रफ हो गया है, तो यहाँ पे हम भी कोई एंजाइम एक्ट करेंगे, ए में करेंगे तो उसको वो ब्रेक डाउन कम कर पाएगा, और बी में वो पहले ही ब्रेक डाउन हो चुका है तो ब्रेक डाउन और इजिली हो जाएगा, ज्यादा रिड्यूसिंग शुगर प्रोड्यूस होंगी। तो प्री ट्रीटमेंट काफी यूजफुल होता है इसमें सैक्रिफिकेशन में। तो उसके बाद ऐसे ही काफी सारी और भी टेक्निक, जैसे एफटीआर, फोरियर ट्रांसफॉर्म, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रा, इसमें भी ये चेक किया था अनट्रीटेड में कितना यूजफुल है, प्री ट्रीट कितना है। एचपीएल से किया था, हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। यहाँ पे शुगर्स का चेक किया था, कितनी शुगर प्रोड्यूस हुई है, टीएलसी, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। तो इस तरीके से काफी सारी ये टेक्निक्स को यूज करके ये चेक किया था सैक्रिफिकेशन। उसके बाद जो भी रिड्यूस्ड शुगर प्रोड्यूस हुई है, रिड्यूस्ड शुगर जो प्रोड्यूस हुई, उसके बाद डिस्टिलेशन यूनिट से उसको रिड्यूस्ड शुगर को किस में कन्वर्ट किया गया था, इथेनॉल, इथेनॉल के अंदर किया गया था। तो इसमें एंजाइम्स और बैक्टीरिया का यूज किया, इसलिए इसको बायोइथेनॉल बोल देते हैं। तो इस तरीके से बायोइथेनॉल का प्रोडक्शन हो गया था। तो ये तो एक स्मॉल स्केल पे लैब में किया। तो ऐसे ही इसको बड़े लार्ज स्केल पे, इंडस्ट्रियल स्केल पे हम लिग्नोसेल्यूलोसिक जो बायो वेस्ट है उसको यूज करके बायोइथेनॉल का प्रोडक्शन कर सकते हैं, और वो हमारे लिए काफी यूजफुल होगा। जैसे ये ओवरव्यू देखते हैं, जैसे एग्रीकल्चर वेस्ट है, फॉरेस्ट रेजिड्यू है, ये सब कुछ इसके अंदर ये कंपोनेंट्स होते हैं, लिग्निन, हेमिसेलुलोज, सेलुलोज। इनको ब्रेक डाउन करते हैं प्री ट्रीटमेंट से। ब्रेक डाउन करने के बाद जो शुगर प्रोड्यूस हो रही है, उसका डिस्टिलेशन, फर्मेंटेशन करके बायोइथेनॉल प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो ये इस तरीके से इसको इंडस्ट्रियल स्केल पे भी यूज कर सकते हैं और बायोफ्यूल का प्रोडक्शन कर सकते हैं, जो हमारे लिए काफी वैल्यूएबल प्रोडक्ट है, हमारे एनवायरनमेंट के लिए भी, हमारे लिए। तो इस तरीके से हम बायोफ्यूल का प्रोडक्शन कर सकते हैं, और इसमें हमने माइक्रोबायोलॉजी और केमिस्ट्री दोनों का रिलेशन, का रिलेशन इसमें हमने स्टडी किया। तो ऐसे हमारे लिए केमिस्ट्री डे टू डे लाइफ के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, और माइक्रोबायोलॉजी का इन्वॉल्वमेंट इस तरीके से करके, केमिस्ट्री का इन्वॉल्वमेंट करके हम जो वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स हैं उनकी फॉर्मेशन कर सकते हैं। थैंक यू।